الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گی۔ سبق نمبر 77 میں ہم انشاءاللہ ادوات الاستفہام پڑھنے جا رہے ہیں۔ ادوات الاستفہام یعنی کہ سوال کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں یا ٹولز ہیں ان کو ادوات کہیں گے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سوال کرنے کے الفاظ جو ہیں۔ اچھا، تو یہ لسٹ ہے ادوات الاستفہام کی، یعنی کہ کوشچن ورڈز، یعنی کہ سوال کرنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں عربک میں۔ تو اس میں من ہے، من کا مطلب کون، ٹھیک ہے، من کا مطلب ہے کون۔ میں لکھتی جاتی ہوں اردو میں کیونکہ یہ انگلش کی بک سے لیا گیا ہے۔ تو من کا مطلب ہے کون، اور من جب استعمال ہوتا ہے جب کسی ذی شعور کے بارے میں پوچھا جائے، انسان، جن اور فرشتے، کون، ٹھیک ہے۔ ماذا اور ما مین کیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو جب کسی چیزوں کے بارے میں یا جانور کے بارے میں تو ماذا، اور متا جو ہے اس کا مطلب ہے کہاں، کہاں، ٹھیک ہے۔ اور آئینہ، او سوری، متا کہاں نہیں ہے، آئینہ کہاں ہے، آئینہ کا مطلب ہے کہاں، اور متا کا مطلب ہے کب، ٹھیک ہے، متا کا مطلب ہے کب۔ اور لی ماذا کیوں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ لی ماذا جو ہے، لی اور ما، لی ما، لی کا مطلب کس لیے، اور کس وجہ سے، کس وجہ سے، لی ما فار واٹ ریزن۔ تو لی، یہ لی اور ما کا کمبینیشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کیوں، ٹھیک ہے، فار واٹ ریزن، کیوں۔ کیفا، کیسے، کیسے، کیفا حالو کا، کیسے آپ کے حال کیسے ہیں، کیسے ہیں آپ، تو کیسے، ٹھیک ہے۔ حل جو ہے وہ سوال بنانے کے لیے، کیا تم نے، کیا وہ یہاں ہے، کیا اس نے یہ کیا، اس نے کھایا، اس نے تو سوال کرنے کے لیے یہ آتا ہے، اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کے شروع میں آتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے شروع میں آئے گا تو کیا اس نے کھا لیا، کیا اس نے لکھا، کیا اس نے پڑھ لیا، اس طریقے سے۔ اور اگر جملہ اسمیہ کے سے پہلے آئے گا تو کیا وہ موجود ہے، کیا وہ ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور آئی جو ہے وہ ہے آئی کون سا، ٹھیک ہے، کون سا۔ اور آئی جو ہے وہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، اور اس کا ایک مضاف الیہ ہوتا ہے۔ ایو مسجد، کس مسجد میں، ٹھیک ہے، کون سی مسجد میں یا کس مسجد میں، ٹھیک ہے۔ ایو فصلن، کس کلاس میں، کون سی یا کون سا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایو جو ہے ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ کون سی مسجد تو مسجد مضاف الیہ بنے گی، کون سی کلاس تو کلاس مضاف الیہ بنے گی، کون سا شہر تو شہر مضاف الیہ بنے گا، اور کون سا مہینہ تو مہینہ مضاف الیہ، یعنی کہ ٹھیک، مہینہ کے لیے عربک میں ورڈ ہے شہر ہے نا، ایو شہرن، کس مہینے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آئے گا کہ یہ مضاف الیہ بن کے آتا ہے، ایو ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کہ ہم یہ کوشچن ورڈز پڑھ رہے ہیں تو اس کے کچھ گرامر کے رول ہیں۔ اس میں دیکھیں، جو یہ سوال کے لیے جو الفاظ ہیں، سوال کے لیے جو الفاظ ہیں وہ جب آتے ہیں تو وہ کوئی اس اپنا گرامر کا اثر کسی آگے آنے والے جملے پہ یا آگے والے الفاظ پہ کوئی اثر نہیں ڈالتے، عامل نہیں ہوتے یہ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہے نا کہ جو حرف جر ہوتے ہیں وہ عامل ہوتے ہیں، حرف جر حروف ہیں وہ بھی لفظ ہیں، لیکن حرف جر کیا کرتے ہیں، اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حروف جر اپنے بعد آنے والے جو لفظ ہوتے ہیں، وہ اسم ہوتے ہیں، اس کو مجرور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حرف انا واخواتو ہیں، حروف انا واخواتو ہیں، تو وہ جو ہیں وہ جن کو مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، حروف ناسخہ بھی کہتے ہیں، تو انا، انا کا انا بھی انا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو منسوب کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا اعراب بدل دیتے ہیں، ان کا کوئی اثر ہوتا ہے، عمل کرتے ہیں، وہ اپنے آگے والے اسم پر عمل کر کے اس کو بدل دیتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں عامل۔ وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ایسے الفاظ جو اگلے آنے والے الفاظوں کی اعرابی حالت کو بدل دیں، یا ان کا کچھ اثر ہو اگلے آنے والے الفاظ پہ، تو ان کو کہتے ہیں عامل، ٹھیک ہے۔ میں لکھ دیتی ہوں عامل۔ لیکن یہ جو کوشچن ورڈز ہیں یا جو سوال کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عامل نہیں ہوتے، وہ غیر عامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ادوات الاستفہام ہیں، ادوات الاستفہام کو ہم کہیں گے کہ یہ غیر عامل ہیں، ٹھیک ہے، غیر عامل ہیں، ان کا کوئی
ग्रामेटिकल इफेक्ट नहीं होता, ग्रामर का असर नहीं होता। और ये सिर्फ जुमला जुमला इसमिया में भी आते हैं और जुमला फेलिया में भी आते हैं। दोनों जुमलों में आते हैं के शुरू में अगर इनको बस लगा दें तो वो सवाल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सवाल बन जाते हैं। ठीक है, जुमला फेलिया के शुरू में लगा दें तो जुमला फेलिया सवाल में सवाल बन जाता है, और जुमला इसमिया के शुरू में लगा दें तो जुमला इसमिया सवाल बन जाता है। ठीक है, अच्छा, इस स्लाइड पे हमारे पास जो लिस्ट है वो है जुमला फेलिया के लिए। जुमला फेलिया में किस तरीके से ये अदवातुल इस्तिफाम आते हैं। अब देखें, मन दरसा, किसने पढ़ा, किसने पढ़ा, दरसा पढ़ा, किसने पढ़ा। अच्छा, उसके बाद ये अभी देखें, दरसा जो है वो फेले मादी है ना, तो जब हम हल लगाएंगे तो या हमज़तुल इस्तिफाम लगाएंगे तो इसका मतलब है क्या उसने पढ़ा। और हम ये भी कह सकते हैं क्या वो खाता है, क्या वो पढ़ता है। तो जो है फेले मुदारे से पहले हल लगेगा तो क्या वो पढ़ता है, क्या वो खाता है। अगर फेले मादी से पहले हल या हमजा लगेगा, हल या हमजा लगेगा तो क्या उसने पढ़ा, क्या जैनब ने पढ़ा। इसी तरीके से मता लगा तो कब, मता कब, कब जैनब ने पढ़ा। या मता दरस्ता, कब तुमने कब पढ़ा। मता दरस्ता, तुमने कब पढ़ा। मता दरस्ती, अगर सामने कोई लड़की है और मैं उससे पूछ रही हूँ कि तुमने कब पढ़ा, तो मैं कहूँगी मता दरस्ती। मेरा बेटा सामने है तो मता दरस्ता, तुमने कब पढ़ा। ठीक है, फिर कहाँ पढ़ा, आईना आईना दरासत जैनबू, तुमने कहा, सॉरी, आईना दरासत जैनबू, जैनब ने कहाँ पढ़ा, आईना जैनब। मैंने किसी टीचर ने अपने सामने है उसका तालिब इल्म, तो टीचर पूछ रहा है तुमने कहाँ पढ़ा, तो आईना दरस्ता। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्यों पढ़ा, लिमाजा दरासत जैनबू, तुम जैनब तुमने क्यों पढ़ा, लिमाजा क्यों, क्यों। ठीक है, और कैसे पढ़ा, कैफा दरासत, कैसे पढ़ा तो उसने। या दरासत अगर सिर्फ होगा तो उसने कैसे पढ़ा, और अगर दरासत जैनबू होगा तो जैनब ने कैसे पढ़ा। ठीक है, अच्छा, माजा, माजा और माँ एक ही तरीके से एक ही हैं, चाहे शुरू में माँ आए या माजा आए, वो मतलब यही है कि क्या, क्या पढ़ा उसने। माँ दरासत जैनबू, जैनब ने क्या पढ़ा। फिर जैसे मैंने पहले बताया था, आइyi माने कौन सा या कौन सी, तो आइyi जो है हमेशा मुदाफ बन के आता है। तो आइyi, और आइyi जो है ये मजरूर क्यों है, क्योंकि इससे पहले फी आ रहा है। किस मदरसे में, फी आइyi मदरसतिन। ठीक है, किस मदरसे में जैनब ने पढ़ा, दरअसल जैनबू, किस मदरसे में जैनब ने पढ़ा। तो फी हर्जर है, आइyi इस मजरूर है, और फिर वो मुदाफ भी बन रहा है, और फिर मदरसतिन मुदाफिल है। ठीक है, तो फी आइyi मदरसतिन दरअसल जैनबू, किस में पढ़ा। फिर वही इसमें जुमला इसमिया के हिसाब से हैं हमारे पास मिसालें। अब उसमें मन कौन, मन हुआ वो कौन है। ठीक है, फिर ये कि क्या वो मौजूद है, तो हल हुआ मौजूदन, हल हुआ मौजूदन, वो मौजूद है, लेकिन उससे पहले हल लगा देंगे तो क्या वो मौजूद है। ठीक है, उससे पहले हल लगा देंगे तो वो सवाल बन जाएगा क्या वो मौजूद है। अच्छा, काना मौजूदन, वो मौजूद था। काना जो है फिर वो मायने को माजी के ज़माने में ले जाता है ना, तो काना वो मौजूद था। और काना का, काना से शुरू होने वाला जुमला जो होता है आपको पता है वो इसमिया होता है। ठीक है ना, तो काना मौजूदन, वो मौजूद था। अब हमने पूछना है कब मौजूद था, तो मता काना मौजूदन, वो कब मौजूद था। इसी तरीके से आईना हुआ, वो कहाँ है। फिर ये कि लिमाजा हुआ मौजूद, वो क्यों था, क्यों है यहाँ, क्यों है यहाँ। हुआ मौजूद, वो मौजूद है यहाँ। और लिमाजा हुआ मौजूद, वो यहाँ क्यों है, या वो क्यों है यहाँ। अच्छा, फिर ये कि पूछना है कि व्हाट इज दिस, कि वो क्या है, वो क्या है। वो कोई चीज़ है, और या कोई जानवर है, किसी के बारे में पूछना है ये कि ये क्या है, तो माजा मा हुआ। तो ये है, ये बहुत बेसिक सी वो जुमले हैं, लेकिन वही है कि अदवातुल इस्तिफहाम के लिए इसको जैसे मिसालों से समझाया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, एक ग्रामर रूल ये है कि मतलब आप देखेंगे कि क्या होता है कि अगर किसी जुमले में जान मजरूर आ रहा हो, जार मजरूर आ रहा हो और उसको वो सवालिया जुमला बनाया जाए। ठीक है, जुमले में जार मजरूर आ रहा हो और उसको सवालिया जुमला जुमला हो, वो बनाया जाए, या वो खुद जुमला हो सवालिया जुमला, तो हर्फ जर जो है वो जो सवाल वाले अल्फाज होते हैं अदवातुल इस्तिफहाम, उससे पहले आता है। मतलब हर्फ जर बिल्कुल शुरू में आ जाता है। अगर जैसे कोई जुमला है उसमें जार मजरूर है, लेकिन वो उसको सवाल बनाया है, तो सवाल वाले लफ्ज से जो अदवातुल इस्तिफहाम है उससे पहले हर्फ जर आ जाएगा। तो जैसे ये है कि वो कहाँ से है, वो कहाँ से है, मिन आईना हुआ, तो मिन पहले आ गया, मिन हर्फजर है ना, और आईना जो है वो सवालिया लफ्ज है, तो मिन आईना हुआ। तो
हर्जर सब क्वेश्चन वर्ड से पहले आ गया। इसी तरीके से अम्मा यतसाअलूना है, तो अम्मा जो है असल में देखें अम्मा अन और माँ का मजमुआ है, अन अन और माँ का मजमुआ है अम्मा। तो अन हर्जर है और के किस चीज के बारे में, किसके बारे में, अम्मा किसके बारे में, वो एक दूसरे से सवाल करते हैं, यतसाअलूना वो एक दूसरे से सवाल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरे से सवाल वो इसलिए आ रहा है कि ये फैमिली 6 है, ठीक है, बाप तफाउल है। तो वो एक दूसरे से किसके बारे में सवाल करते हैं, तो अम बारे माँ, किसके बारे में सवाल करते हैं। तो अम्मा देखें किस तरीके से ये ऐसे बने हैं, क्योंकि अम्मा तो जब हर्जर माँ के साथ आ रहा होता है ना, जब माँ के साथ हर्जर आ रहा होता है तो माँ के अलिफ को, माँ का जो आखिर में अलिफ होता है ना उसको गिरा देते हैं और सिर्फ फता रह जाता है। ये देखें यहाँ पे फता दिख रहा है, ठीक है। तो अम्मा, इसी तरीके से फीमा में, ये फीमा में आपको अलिफ नहीं दिख रहा बल्कि अलिफ हटा हुआ है और फता है सिर्फ। ये फीमा कुन तुम किस चीज़ में थे, किस चीज़ ने तुमको इख्तलाफ में डाला था, फीमा कुन तुम फी ये तख्तलिफून, किस चीज़ में तुमको इख्तलाफ में डाला हुआ है। तो फी और ये माँ है, ठीक है, फी माँ। इसमें भी देखें माँ जो है वो सवालिया लफ्ज़ है और फी उससे पहले है, तो हर्फ जर पहले आ जाता है। जब किसी जुमले में जार मजरूर हो तो हर्फ जर पहले आ जाता है। फी माँ कुन तुम, किस चीज़ में थे हो तुम सब। अच्छा, और फिर लिमा है, लिमा में भी यही है कि ली है और माँ है, किस किस वजह से, किस वजह से। तो क्यों, किस वजह से जब पूछा जाएगा तो उसको क्यों भी कहा जा सकता है, क्यों तुमने इजाज़त दी उन सबको। अजिंता लहूं, लिमा अजिंता लहूं, अजिंता में तुम एक बंदा जो सामने है, क्यों तुमने इजाज़त दी, हुम लहुम उन सबको, ठीक है। लिमा अजंता लहुम, क्यों इजाज़त दी तुमने उन सबको, ठीक है। तो इसमें भी ली हर्जर है और माँ जो है वो अ, सवालिया लफ्ज़ है, ठीक है। तो इस स्लाइड पे आपने पढ़ा कि अगर जार मजरूर किसी जुमले में हो और वो सवालिया जुमला हो तो सवालिया लफ्ज़ से पहले आ जाता है हर्फजर, ठीक है, ये पढ़ा आपने। और माँ के साथ अगर कोई हर्फजर मिलता है तो फिर माँ का अलिफ जो है लिखने में क्या होता है कि माँ का अलिफ जो है वो गिरा दिया जाता है और उसके ऊपर फता आ जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ा आपने। अब ये कुछ प्रैक्टिस है, बहुत बेसिक प्रैक्टिस है, बुनियादी जुमले हैं वो। मैं क्योंकि ये सब सवाल, ये अदवातुल इस्तिफ़हाम पढ़ रहे हैं ना, तो मैं 1 मिनट में वो मदीना बुक जो पहली मदीना बुक है उसमें जाती हूँ और वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब मदीना बुक 1 है और इसका पहला ही सबक है और ये है। इसमें देखें मा हाजा, ये क्या है, हाजा बैतुन, ये घर है। फिर ये हमज़तुल इस्तिफ़हाम आ गया, क्या हाजा बैतुन, क्या ये घर है, नाम जी हाँ ये घर है, हाजा बैतुन। फिर इसी तरीके से मा हाजा, ये क्या है, हाजा कमीसुन। हाजा सरीरुन, क्या ये बेड है, बिस्तर है, तो जाहिर है ये बिस्तर नहीं है, ये तो कुर्सी है, तो इसके फिर जवाब में क्या है, ला हाजा कुर्सीयुन। तो इसमें क्या हुआ, हाजा सरीरुन से पहले सिर्फ हमज़तुल इस्तिफ़हाम का हाजा सरीरुन ये मुब्तदा और खबर है, जुमला इस्मिया है, उसमें सिर्फ हमज़तुल इस्तिफ़हाम आगे आया और वो सवाल बन गया, हाजा सरीरुन कि क्या ये क्या ये बिस्तर है। इसी तरीके से अहाजा, अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है, ला हाजा कलमुन, नहीं ये कलम है। तो ये है मा हाजा, ये क्या है, ये डेस्क है, मेज़ है लिखने पढ़ने की। मा हाजा ये बिस्तर है, इसी तरीके से ये है, ठीक है। अहाजा कमीसुन, क्या ये कमीस है, नाम हाजा कमीसुन। अहाजा बैतुन, नाम हाजा बैतुन। अहाजा मिफ्ताहुन, ला ये तो चाबी तो नहीं है ना, ठीक है ना, ला हाजा कलमुन, इस तरीके से। फिर सामने आदमी मतलब डॉक्टर दिख रहा है तो मन हाजा, कौन है ये, हाजा तबीबुन, ये तबीब है। मन हाजा, ये कौन है, ये लड़का है, हाजा वलदुन। फिर ये दिख रहा है यूनिफॉर्म में, तो मन हाजा ये कौन है, तो यूनिफॉर्म में ये जाहिर है तालिब इल्म है, हाजा तालिबुन। फिर हाजा वलदुन, क्या ये लड़का है, तो देखने में जाहिर है पता चला ये लड़का नहीं है बल्कि ये आदमी है, तो ला हाजा, ला नहीं, हाजा रजुलुन, नहीं ये आदमी है। ये कौन, मन हाजा ये कौन है, हाजा ताजिरुन, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे हैं। अच्छा, अब इसके हम मेरे ख्याल से सफ़ा नंबर 28 पे भी है, सफ़ा नंबर 28 पे, हाँ ये जैसे आईना हमने पढ़ा है ना, तो आईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है, हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में है। और आईना व आईना यासरुन, और यासिर कहाँ है, हुआ फिल हमामी, वो बाथरूम में है, हमाम में है। आइनल किताब व आइना आमिनतु, और आमना कहाँ है, या फिल मतबखी, वो बावर्ची खाने में है। आइनल किताबु, किताब कहाँ है, वो मेज़ के ऊपर है, हुआ अलल मकतबी, ठीक है ना। इस तरीके से है। इसी तरीके से ये सवालात हैं,
یہ سوالات ہم جو لائیو سیشن ہے اس میں بھی کر لیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ایکسرسائز بھی ہے انشاءاللہ، وہ ہم کریں گے لائیو سیشن میں اپنے. ٹھیک ہے، تو لائیو سیشن میں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں یہ ریکارڈنگ بند کرتی ہوں دعا کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.